السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام باجی. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. تھرسڈے کا دن الحمدللہ. Let us make the dua first. ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. We begin with Darud Ibrahim. Inshallah, Zara will play it. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. Once again, welcome my dear sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. شکر ہے اللہ کے الحمدللہ کہ ہم سب پھر سے جمع ہوئے. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 1 سورت البقرہ آیت نمبر. Inshallah we will be doing the tilawat from ayat number 14 onwards, inshallah. Over to Nishat for the tilawat. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 14. What happened, Nishat? Any problem with tilawat? Yes. Yes, there seems to be some problem. Again. Why? You are on the right track. Just play I'm it now. Yeah. Okay, let me try. You just close it, okay? جی جی.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Sadaqallahul Azim. Could you hear it, Sana? We could hear it. Okay, Alhamdulillah. Jazakallahu khaira. Now will you be able to share the ayat or not, Sana? You can try them until I do some revision, okay? हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 1 आयत नंबर 14 से हमें करना है. वी आर स्टडिंग अबाउट द मुनाफिकीन. आपको याद है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कौन सी आयतें चल रही है? मुनाफिकीन के बारे में. कौन होते हैं मुनाफिक? डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेट्स, टू फेसेड पीपल. इनके बारे में हमने क्या पढ़ा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक के अंदर 3 निशानियां होती है. नंबर 1, जब बोले झूठ बोले. जब कोई अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे, और जब कोई वादा करे तो वादा तोड़ दे. 3 signs of hypocrites: when he speaks lies, and when he is entrusted, then he betrays, and when he promises, he breaks the promise. और क्या पढ़े हमने मुनाफिक के बारे में? कि वो फसाद करते हैं जमीन में. Isn't it? याद है आपको? We studied about the corruption, फसाद, also pollution. कचरा फेंकते हम लोग, प्लास्टिक फेंकते हैं. याद है या भूल गए? किसी को याद है? एनीबडी? हमने क्या क्या पढ़ा? और वो समझते हैं कि वो धोखा देते हैं अल्लाह को, बट एक्चुअली वो किसको धोखा दे रहे होते हैं? Whom are they deceiving? याद आया? Anybody would like to raise hand? Shaheen, as usual, mashallah. Yes, Shaheen. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. They Ji. assume they are cheating Allah subhanahu wa ta'ala and they are cheating the believers, but actually they are cheating themselves. Yes, actually they are cheating themselves, but they don't realize. Very good. Right. Then we also studied, Shaheen, keep yourself unmuted. That would be nice of you. Then we studied in ayat number 10. Fi qulubihim maradun. In their hearts, there is a disease, there is a sickness. उनके दिलों में एक बीमारी है. कौन सी बीमारी की बात हो रही है? About which disease? गलतफहमी जो है उन लोगों को और दूसरों के बारे में गलत बोलना, एक दूसरे की बुराई करना, गीबत करना, ये सारी चीजें.
نہیں, ابھی جو ہم نے پڑھے کہ ان کے اندر یہ 3 برائیاں سب سے بڑی ہے, جھوٹ, دھوکا جی اور امانت میں خیانت. جی تو یہ جھوٹ بولنے کی بیماری, دھوکا دینے کی بیماری, یہ بیماری ہے منافقت کی. اوکے, جی so this is not only in their heart, from their heart it reaches their deeds, عمل میں آتی ہے نا, and it shows in their actions. تو یہ جو بیماری ہے ہاں منافقت کی, دھوکے بازی کی, ہپوکریسی کی, تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ اس بیماری کو پھر اللہ بڑھا دیتا ہے, اس بیماری کو ان کے, ہے نا, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کو بڑھا رہے. وہ تو سمجھ رہے کہ ہم سب کو الو بنا رہے, اینڈ دے انجوائے these wrong doings, ہے نا. رائٹ ہاں یس. تو پھر ہم نے کیا سیکھا کہ اس بیماری کو کیسے مٹانا ہے. یو ریمبر, ہم نے اس کا ایک ریمیڈی بھی سیکھے تھے. انجم, آپ کو یاد ہے اس کا علاج کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو؟ ہاں ہم اگر توبہ کر لے, ہاں, ویری گڈ, انشاءاللہ. ویری گڈ, دیٹ از دا ریمیڈی. یس, جب انسان, ہم نے یہ حدیث پڑھے تھے نا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے, اور اسے جیسے ہی ریئلائز ہو اور وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں, اس کالے دھبے کو. لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتے ہی جائے تو دھیرے دھیرے اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. You had seen that picture of a black heart, isn't it? تو یہ سب اس لیے بما کانوا یکذبون, کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے, isn't it? تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے. کتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں اب کہ ہم جھوٹ سے بچے؟ Are we trying? کیا کوئی کانشیسلی جھوٹ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے؟ Kindly raise your hands so that مجھے پتا چلے کہ all of you are with me. Yes, الحمدللہ. جی, اب جھوٹ سے بچنے کا علاج ہے ہمارے پاس. ماشاءاللہ, سب کے ہاتھ اوپر آ رہے. ابھی کوئی مجھے یہ بتائے کہ جھوٹ سے بچیں گے کیسے؟ ہے آپ کے پاس علاج؟ Anybody? Tell me, جھوٹ سے کیسے بچا جائے, جھوٹ بولنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہے کوئی راستہ؟ یہ انجم, آپ بولیے. ہم سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جیسے بات بنانے کی کوشش نہیں کرتے. زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ سچ بولے, چاہے 2 بات سن لے, لیکن ہماری گیپ سے انشاءاللہ ضرور مدد کریں گے, لیکن زیادہ سے زیادہ. اوکے, انشاءاللہ. اور کوئی anybody else کہ جھوٹ کیسے چھوڑے ہم, یہ جھوٹ چھوٹے کیسا ہم سے؟ ہے کسی کے پاس علاج اس کا؟ think about it. تھوڑا سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے. we can give some time. yes, who is this? I cannot see your name. اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں سچائی کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. I cannot hear you. disturbance ہے. Okay. there is disturbance at your end. please آپ میوٹ کیجئے, اپنے آپ کو میوٹ کیجئے. there is some disturbance. mute yourself please. یا اللہ, ان کو میوٹ کرو پلیز. ہاں اوکے, تو ہم نے یہ پڑھا کہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. بہت سمپل علاج ہے اس کا کہ ہم جھوٹ بولنے سے کیسے بچے. کہ جب بھی ہم زبان سے جھوٹ بولے تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو تو سچ پتا ہے, اللہ نوز کہ سچ کیا ہے. تو پھر میں یہ جھوٹ جو بول رہی ہوں, یہ میں کس کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ اللہ کو تو دے نہیں سکتی. اور اگر کسی اور کو دھوکہ دوں گی جھوٹ بول کر تو پھر نقصان تو میرا ہی ہے, کیونکہ جھوٹ کا گناہ میرے سر پہ آ رہا ہے
एंड अल्लाह तो देख रहा है, वो तो सुन रहा है। तो जब मैं अल्लाह से बच ही नहीं सकती झूठ बोल के, तो ये दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए मैं क्यों झूठ बोलूं, इतना बड़ा गुनाह ले लूं। और मुनाफिक के बारे में हमने पढ़े, झूठ बोलने की वजह से कौन सा अजाब है, वलहुम अजाबुन अलीम, देयर इज अ पेनफुल पनिशमेंट, दर्दनाक अजाब जहन्नम के आग में। तो एक झूठ का की सजा जहन्नम की आग है, दर्दनाक। तो कैन आई अफोर्ड? तो फिर अगर हम थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए सोचे इंशाल्लाह, और अल्लाह का ऐसा खौफ और तकवा आ जाए कि फिर हम झूठ से रुक जाए। इजी। तो इंशाल्लाह वी विल प्रैक्टिस दिस। वो कौन थे, एक बॉक्सर, क्या नाम था उनका, मोहम्मद अली। वो क्या करते थे, अपने पॉकेट में एक मैच बॉक्स रखते थे, यूज्ड टू कीप अ मैच बॉक्स इन हिज पॉकेट। और जब भी उनसे कोई गुनाह होता तो वो अपनी मैच स्टिक से अपनी ही उंगली या अपनी जबान को चटका देते थे। एंड देन दैट मैच बॉक्स वुड रिमाइंड हिम कि ये तो थोड़ा सा चटका है, जहन्नम का चटका, जहन्नम की आग कितनी जबरदस्त होगी। सो दिस इज हाउ ही यूज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम सिंस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें भी इंशाल्लाह इस तरह कोशिश करनी है कॉन्शियसली, क्योंकि कॉन्शियसली कौन कोशिश करता है, मुत्तकी। और बहाने और धोखेबाजी कौन करता है, मुनाफिक। तो अब हमने सीख लिया है, इंशाल्लाह हम इससे बचेंगे। फिर आगे क्या बताया गया कि ये क्या करते हैं, फसाद करते जमीन में। व्हेन दे आर बीइंग सेड कि स्टॉप polluting and stop corrupting in the land, तो दे से नो, वी आर ओनली द रिफॉर्मर्स, हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला सेज beware, indeed these people are the corruptors and but they don't realize. फिर 13 में हमने पढ़ा वा इजा कील लहुम, एंड व्हेन इट इज बीइंग सेड टू देम आमिनू, तुम सब ईमान ले आओ, कमा आमनन नासु, जैसे कि इंसान ईमान लाए, जैसे सहाबा इकराम ईमान लाए। कौलू, तो उन्होंने क्या कहा, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए जैसे कि ईमान लाए बेवकूफ। उन्होंने किसको बेवकूफ कहा, सहाबा इकराम को, नौजुबिल्लाह। और क्यों बेवकूफ कहा, क्योंकि सहाबा इकराम ने खूब कुर्बानियां की ईमान की खातिर, इस्लाम की खातिर। They left their houses, their properties, they left Makkah, they migrated to Medina, and they had to suffer so much torture, loss. So in spite of all of this, they remained firm-footed on Islam. And these munafiqun, they called them foolish people, sufaha, nauzubillah. Allah Ta'ala says, Allah, beware, innahum humus sufaha. Indeed, these munafiqeen are foolish people. They are idiots. But walakin, lekin, la ya'lamun, nahi wo jante, nahi wo ilm rakhte. But they don't realize, they don't understand. Till here we are done. Now we will move to ayat number 14. Ayat number 14 is on the screen. Wa iza laku, wa or, and. Iza, when. Laku, they met. When they met. Alladhina amanu, whom did they meet? They met those who believed, the mu'min. When these munafiqeen, they met the mu'min, they said, qalu, they said, amanna, we believed, we also believe. What did they say? We believed, we also believe. Wa iza, and when, khalau, they were alone, khalau, they were alone, ila shayatinihim, with their satanic friends, with the like-minded people. Qalu, they said, inna ma'akum, inna, indeed we,
Ma'akum, we are with you. When they are with their friends, they say, indeed, we are with you. When they meet Mu'min, they say, we also believe. Innama, Allah Ta'ala says, indeed. Not Allah Ta'ala. These munafiqun say, innama nahnu mustahziun. Indeed, we are just making fun of them. We are kidding with them. We are mocking them. हम सिर्फ उनका मजाक उड़ा रहे हैं. मुस्तहजिउन, हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं. We'll do it in Urdu now. وَإِذَا لَقُوا, और जब वो मुलाकात करते. देखिए लकू में मुलाकू वर्ड है इसमें. जब वो मुलाकात करते हैं किससे? अल्लज़ीना आमनु, उन लोगों से जो ईमान लाए, मोमिनों से. यानी जब मोमिन उनको मिलते हैं तो ये मुनाफिक जो होते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड लोग, वो उनको क्या कहते हैं? आमन्ना, हम भी ईमान लाए. तुम मोमिन हो ना, हम भी मोमिन है, हम भी ईमान लाए. वइज़ा खलौ, और जब वो अकेले में होते हैं, तन्हा होते हैं, इला शयातीनिहिम, तरफ अपने शैतान सिफत दोस्तों के, अपने जैसे दूसरे मुनाफिकों के साथ होते हैं, तो कहते हैं कौलू, फिर वो कहते हैं इन्ना, बेशक हम, माअकुम, मा का मतलब होता है साथ, कुम तुम्हारे. देखिए कुम कितना इजी है ना, अच्छा है. कुम का मतलब क्या है? तुम. निशात, कुम का मतलब क्या है? कुम का मतलब तुम. बोलो, कहाँ गई निशात? मेरी आवाज तो आ रही है ना मुस्ताबाद जी? Can you people hear me? Somebody just tell me please. Yes, Baji, we can hear you. Okay. Alhamdulillah. Sometimes I feel that only I'm talking and nobody can hear me. There can be a network issue also. So just confirming. Huh. So Anjum, keep yourself unmuted. आप unmute करके रखिए अपने आप को. हाँ, अभी आप बोलिए. कुम का मतलब तुम. हाँ, कितना इजी है ना. कुम का मतलब तुम. हाँ, ओके. तो हम कहाँ तक पहुंचे थे अभी आयत में? हाँ, माअकुम, वो कहते हैं कि इन्ना, बेशक हम, माअकुम, साथ है तुम्हारे. इन्नमा, बेशक, नहनु, हम, मुस्तहजिऊन, हम उनका मजाक उड़ाते हैं. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अभी आगे देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु यस्तहजिउ, अल्लाह सुब्हानहू ताला मजाक उड़ाते हैं, बिहिम, उनका. अल्लाह सुब्हानहू ताला इन रिटर्न, जवाब में मजाक उड़ाते हैं उनका. वयमुद्दुहुम, और वो ढील देते हैं उनको. अल्लाह ताला ढील देते हैं उन लोगों को. फी तुगयानिहिम, उनकी सरकशी में, उनकी इस हद से आगे गुजरने में. या अमहून, वो अंधे होकर भटकते हैं. ठीक है ना. विल डू इट इन इंग्लिश. अल्लाहु यस्तहजिउ, Allah mocks them in return. Allah mocks them in return. وَيَمُدُّهُمْ, and Allah Ta'ala extends them. Allah Ta'ala extends them. فِي طُغْيَانِهِمْ, in their transgression, in their crossing limits. يَعْمَهُونَ, they wander blindly. They wander blindly. Huh. So now we will see what does Allah Ta'ala say about them in this ayah. That when they meet the Mu'min, see how double-faced they are. When they meet Mu'min, they say we are also Mu'min. And when they are alone with their own company, then they say that we are with you. So isn't this like sailing in two boats at the same time? They sail in two boats at the same time. They want to be with Mu'min also, and they want to be with their company also, where they are
not believing in their hearts. Okay. Who is their company? Their company is all mischievous people, धोखेबाज, झूठे, मक्कार, सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाने वाले. They are dishonest people. तो ये क्या करते हैं, खुद भी मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं, मोमिनों को क्या कहते हैं, बेवकूफ, और उनसे दोगली बातें भी करते हैं. एक बार कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ थे, और इधर आके इनको भी कहते हैं हम तुम्हारे साथ. Have you ever seen any political parties? So there are some small little political groups, and they do not support any bigger group until the election results are out. Once the election results are out, and whichever bigger political party wins or gets majority votes, then these smaller groups, they extend their support to that bigger political party because they want to be in the power. They want to be in the winning team, isn't it? So ऐसे ही politics धोखेबाजी करते हैं ये मुनाफिक. अभी हमारी लाइफ में अगर हम चेक करें तो हम भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, isn't it? लेकिन जब हम कोई ऐसी ग्रुप्स में, ऐसी मजलिसों में शामिल हो जाते हैं कि जहां सब लोग कोई मस्ती, कोई गलत काम कर रहे हैं, हम भी उसमें थोड़ी देर के लिए शामिल हो जाते हैं, and we are with them enjoying and partying, and then we forget about all limits that Islam has set upon us. हलाल हराम, सही गलत सब भूल जाते हम थोड़ी देर के लिए, और उसमें शामिल हो जाते या नहीं होते. We have to check ourselves. I have to check myself. You have to check yourself. ये शैतान उकसाता है. तो इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वो मोमिनों का मजाक नहीं उड़ा सकते, बल्कि उनके इस मजाक के जवाब में अल्लाह ताला ही उनका मजाक उड़ाते, और अल्लाह ताला फिर उनको और ढील देते. अल्लाह ताला gives them more and more chance. किस चीज का चांस? वयमुद्दुहुम, मुद्दा कहते हैं ढील को, कि और मौका देते हैं, opportunity to do more wrong. And they think that we are fooling everybody, but Allah knows, and Allah gives them more chances, and they keep on sinning and sinning. और फी तुग़यानिहिम यअमहून, इसी सरकशी में, इसी ट्रांसग्रेशन में वो अंधे होकर भटक रहे होते हैं. ये कैसे अंधा होकर भटकना है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे ना, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये कितनी डरावनी चीज है. अंधा होकर भटकने की का एग्जाम्पल हमको मिलता है सूरह हदीद आयत नंबर 14 में. इसका रेफरेंस मिलता है. देखिए, कुरान की एक आयत का रेफरेंस हमको कुरान की दूसरी आयतों में मिलता है. So if we have to study Quran in detail, we have to find its reference in the Quran itself. We don't have to look out for any other book. You have to find the reference in Quran itself. So in Surah Hadid, ayat number 14, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, देन उर्दू में बीच बीच में भी एक्सप्लेन कर दूंगी इंशाल्लाह. On the day of judgment, what will happen? Just गौर से सुनिए. On the day of judgment, क़यामत के दिन, everyone will be told to follow the ones whom they worshipped or idolized. क़यामत के दिन हर एक इंसान उसके साथ खड़ा होगा जिसको वो फॉलो करता था, जिसकी वो इबादत करता था, है ना. तो ऐसे ग्रुप्स बन जाएंगे, और फिर जो भी उन झूठे आइडल्स को वर्शिप करता था, वो झूठे आइडल्स के साथ वो पूरा का पूरा ग्रुप जहन्नम में धकेल दिया जाएगा. अस्तगफिरुल्लाह. तो सारे शिर्क करने वाले, झूठे माबूदों की इबादत करने वाले, they will all fall into the hellfire. Now who will remain? Who will remain? Only the muttaqi and munafiqeen. Two categories will remain. Are you getting this? All the idol worshippers will fall into the hellfire. They will be thrown into the hellfire along with their
आइडल्स, उनके माबूदों के साथ वो जहन्नम में धकेल दिए जाएंगे. फिर कौन बचेगा? एक्सेप्ट मुत्तकी एंड मुनाफिकीन. मुत्तकी तो बचेंगे ही ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अल्लाह की इबादत करते हैं सिर्फ. मुनाफिकीन क्यों बच जाएंगे? क्योंकि मुनाफिकीन भी तो कहते हैं ना कि हम मोमिन है जबान से, है ना, लेकिन मुनाफिकीन मुशरिक में नहीं आते, वो तो धोखेबाजी करते हैं और अमल से झूठे हैं, तो वो भी बच जाएंगे. अब क्या होगा? नाउ देयर विल बी पिच डार्कनेस, अंधेरा होगा, और जहन्नम हेल फायर के ऊपर पुल सिरात होगा, द ब्रिज, वो जो बाल से भी बारीक और तलवार से भी ज्यादा शार्प पुल सिरात, उसको क्रॉस करना है. एंड व्हाट इज देयर बिलो द पुल सिरात? right under the pul sirat is the hellfire. Now they have to cross this pul sirat, and we will also be there with them inshallah. So now we have to choose कि हमको मुत्तकी के ग्रुप में होना है कि मुनाफिकीन के. क्योंकि देखिए अब क्या होने वाला है, अब पुल सिरात क्रॉस करना है सबको, मुत्तकीन को भी और मुनाफिकीन को भी. Now there is darkness, पूरा अंधेरा. I am reading this from सूरह हदीद आयत नंबर 14. फिर क्या होगा? There will be no light, but each person will have a light of himself. हर एक के पास अपना नूर होगा. ये कौन सा नूर होगा? उसके ईमान का नूर होगा. The नूर of his own ईमान, his faith. अब मुत्तकी के पास तो बहुत ईमान है, तो उसका नूर बहुत ज्यादा होगा. और मुनाफिक का ईमान कैसा था? बिल्कुल झूठा, दिखावे का, तो उसके पास कोई लाइट होगी? there will be no light with the munafiq. So while crossing the pool sirat, how do you cross it if there is no light? मुत्तकी तो बहुत इजीली क्रॉस कर रहे होंगे, तो मुनाफिक क्या हो कहेंगे? वो कहेंगे कि ए मोमिनो थोड़ी सी लाइट हमको भी दे दो, थोड़ा सा अपना नूर हमारे साथ शेयर कर लो ताकि हम भी क्रॉस कर ले. तो अल्लाह ताला हुक्म देंगे मोमिनों को कि नो, यू कैन नॉट शेयर योर लाइट विद देम. तो अल्लाह ये मोमिन कहेंगे कि तुम पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ. ये पीछे हटेंगे ना, तो मोमिन और मुनाफिक के बीच में जैसे कि एक दीवार खड़ी हो जाएगी, और मोमिन का नूर उस मुनाफिक को नहीं मिलेगा. मोमिन के पास होगा ईमान और मुनाफिक के पास होगा उसका निफाक. और फिर वो जहन्नम की आग उसको बिल्कुल ऐसे जकड़ लेगी, ऐसे आंकड़े फेंकेगी कि वो बिल्कुल सीधा जहन्नम की आग में पुल सिरात पर से गिर जाएगा. Why? Because of उसके मुनाफिकत की वजह से. Got it? So जो अभी हमने इस आयत में क्या पढ़ा कि वो जो मजाक करते थे ना, इसका जवाब उनको कयामत के दिन ऐसे मिलेगा कि वो अपनी सरकशी में अंधे होकर भटक रहे होंगे. तो ये अंधापन होगा कि देयर विल बी नो लाइट फॉर देम, और वो जहन्नम की आग में इस तरह गिरा दी जाएगी. अस्तगफिरुल्लाह. नाउ वी हैव टू चूज कि क्या अभी भी हमको झूठ बोलना है, क्या अभी भी हमको धोखेबाजी करनी है, या मुत्तकी परहेजगार बनना है. आफ्टर हियरिंग दिस, what do we choose and how conscious we become? Tell me. Hey, कोई reflection? Anybody? हाँ अंजुम हुस्ना बाजी जी. हुस्ना बाजी बोलिए. इतना सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबकी बातें ही बंद हो गई. Exactly. तो बहुत है ना? डरावनी और बहुत ये है. तो अल्लाह ताला हमको निफाक से, मुनाफिकत से बचाए, और हम हर वो काम करें जो कुरान में बताया गया है कि एक मोमिन को क्या करना है. Exactly. इंशाल्लाह. आमीन. जज़ाकल्लाह खैर बाजी. देखिए इसके लिए दुआ है, हमको डरने की जरूरत नहीं है.
अल्लाह ताला ने हमें दुआएं भी सिखाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है. कैन यू सी इट ऑन द स्क्रीन? अल्लाहुम्मा तहिर कल्बी मिनन निफाकी. ए अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे. ओ अल्लाह प्यूरिफाई माय हार्ट फ्रॉम हिपोक्रेसी. व अमली मिनर रियाई, और मेरे अमल को रियाकारी से, दिखावे से, शो ऑफ से पाक कर दे. एंड ओ अल्लाह प्यूरिफाई माय डीड्स फ्रॉम शो ऑफ. व लिसानी मिनल कज़िब, और या अल्लाह मेरी जबान को झूठ से पाक कर दे. ओ अल्लाह प्यूरिफाई माय टंग फ्रॉम लाइंग. व आईनी मिनल खियानती, और ए अल्लाह मेरी आंखों को खियानत से पाक कर दे. एंड प्यूरिफाई माय आईज फ्रॉम ट्रेचरी. फ़इन्नक तअलमु, फिर ए अल्लाह बेशक तू जानता है. खाइनतल अयूनी, तू जानता है खयानत वाली आंखों को. वमा तुखफिस सुदूर, और नहीं है छुपी कोई बात जो सीने में है वो तुझसे छुपी नहीं है. इतनी अच्छी दुआ है. अगर इससे छोटी भी दुआ चाहिए तो वो भी है अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाकी. इतना सभी बोले तो भी हम मुनाफिकत से बचेंगे इंशाल्लाह. अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाकी, ए अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पाक कर दे. आमीन. तो इन दुआओं के आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए प्लीज. अल्लाह हमको ऐसे भटकने से बचा ले, बिकॉज ये क्या है, मुनाफिकत की बहुत ही खतरनाक इसका अंजाम है. Then we move on to the next ayat. Nishat, kindly share ayat number 16. Ulaika allazina ishtaraw dalalat. उलाइका वही लोग, अल्लज़ीना इश्तरौ जिन्होंने खरीद ली, जिन्होंने सौदा कर लिया, अद-दलालत गुमराही का, बिल हुदा हिदायत के बदले. बी जो है ना यहाँ पर एक बदले है, हिदायत के बदले. फमा रबिहत, फिर नहीं नफा होगा, नहीं नफामंद हुई, तिजारतुहुम उनकी तिजारत, उनका बिजनेस. वमा कानू मुहतदीन, और नहीं थे वो हिदायत पाने वाले. इंग्लिश में करते हैं, then we'll come to its explanation. Ayat number 16. उलाइका, those people, about whom are we talking? निशा थोड़ा सा zoom कर दो. उलाइका, those people, मुनाफिक, hypocrites. अल्लज़ीना, those who, इश्तरऊ, they purchased, they bought. What did they purchase? Ad-dalalata, misguidance. What did they purchase? Misguidance. Bil huda, instead of guidance. Fama rabihat, so they did not get any profit. Tijaratuhum, in their trade, in their business deal, there was no profit at all. Wama kanu muhtadin, were and ma not, and not, kanu they were, muhtadin amongst the guided ones, and they were not amongst the guided ones. They did not get the hidayah. Oh, what does Allah Ta'ala say in these ayat? Allahu Akbar. Ayat number 16. Allah Ta'ala says, these are those people. They did a business deal. Business deal, खरीदना, बेचना, हर रोज हम करते हैं. Do we go shopping or not? हम shopping जाते हैं ना, तो समझो कि मुझे, suppose Zara wants to buy ice cream. So Zara will pay, say 20 rupees, you get a softie only. Suppose 50 rupees. So she has to buy ice cream.
So what does she have to do? She will have to pay 50 rupees, or here in London, suppose I have to pay 3 pounds or 4 pounds for ice cream. So I have to pay money in exchange of what I want, ice cream. Barabar. So I want ice cream so desperately that I am ready to spend 50 rupees for that. So now what do I want more? मुझे क्या ज्यादा चाहिए, वो 50 rupees या आइसक्रीम? What do I want? I want 50 rupees or ice cream? I want ice cream. That is why I'm ready to give 50 rupees for that. Got it? तो अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? वो आइसक्रीम चाहिए मुझे. मैं 50 रुपीज देने को तैयार हूँ. मैंने 50 रुपीज दिया और आइसक्रीम ले ली. गॉट इट? वैसे ही ये जो मुनाफिक है, इन लोगों को हिदायत मिली थी थोड़ी सी. अब व्हाट? दे आर डूइंग अ बिजनेस डील. उनको गुनाह करने में इतना मजा आ रहा है. व्हाई? बिकॉज अभी पिछली आयत में हम पढ़े कि अल्लाह ताला उनको ढील दे रहे. अब उनको मजा आ रहा है ना कि हम मोमिनों को बोलते हैं हम ईमान वाले हैं और इधर आके धोखेबाजी भी करते. हम उनको बोलते हैं यस यस वी आर मोमिन, बट जब अजान होती है तो नमाज पढ़ने तो नहीं जाते. और मोमिन होने के सारे पर्क्स तो मिल रहे हैं. यानी जब कोई जंग होती है, बैटल होता है, उसमें जो माल जीत के मिलता है उसमें भी शेयर मिल रहा है. फिर मोमिनों को प्रोटेक्शन मिला हुआ था तो उसको भी एंजॉय कर रहे हैं. ईद आती है तो सेलिब्रेट कर लेते हैं. नमाज पढ़ने तो नहीं जाते. रोजा तो हमसे होता नहीं है, बट ईद आएगी तो खूब सेलिब्रेट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे. सो दे आर एंजॉयिंग द गुड पार्ट्स अबाउट इट. लेकिन जहाँ कुछ मेहनत और कुर्बानी करने का है वो नहीं होता है. तो अभी दे आर एंजॉयिंग द सिंस, और वो समझते हैं कि किसी को पता ही नहीं है हमारे बारे में कि हम ये धोखेबाजी कर रहे हैं. वी आर फूलिंग, बिकॉज ये मुसलमान तो इडियट्स होते हैं ना, दे कैन बी फूल्ड वेरी इजीली, ऐसा वो सोचते हैं. बट अल्लाह ताला नोज एवरीथिंग. सो हियर अल्लाह ताला सेज कि इनका जो बिजनेस डील है कितना घाटे का सौदा है. इन्होंने क्या किया? हिदायत जो इनके पास थी वो दे दी. इसके बदले, गुमराही के बदले, दे चोज मिसगाइडेंस ओवर गाइडेंस. ये कितना घाटे का सौदा है. हाँ, willingly they gave up the हिदायत that they had got. ये कैसे पता चलता है हमको कि जो मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, they got an opportunity to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They got an opportunity to meet him, to be with him, to pray behind him. उनके पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिल रहा है और उन्होंने वो सब कुछ गवा दिया दुनिया की थोड़ी सी ख्वाहिशात और डिजायर्स के लिए. They gave up. They sold their आखिरा for this desires and दुनिया. तो ये कैसा बिजनेस डील था बोलो? This Zara has made that chart ना. Kindly share that one, Sana. Where is this chart? Just a moment. She likes to make these posters, and every day she makes one for me. So I must share it with you people. हाँ, here it is. हाँ, can you see it? हुस्नाबाजी दिख रहा है आपको? देखिए, worst business deal, हिदायत वर्सेस गुमराही. Yes. तो ये उन्होंने ये धोखेबाज लोग होते हैं कि ऐसी बिजनेस डील करते हैं, हिदायत को बेचकर गुमराही खरीद लेते हैं. अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? उलाइका, यही लोग जिन्होंने खरीद ली गुमराही हिदायत के बदले, फमा रबिहत, फिर नहीं कोई प्रॉफिट उनके बिजनेस डील में, नहीं वो हिदायत पाएंगे. नाउ व्हाट हैपेंस हियर? They have no profit at all.
they get only loss and they will not be guided ever. ये नुकसान है. What happens? दुनिया में हम कोई गलती करते कि नहीं? रोज करते हैं. We make mistakes. But एक अक्लमंद इंसान कौन होता है? One who learns from his own mistakes, past mistakes. But these idiots, यानी जो मुनाफिक होते हैं, they don't learn from their mistakes. Why? Because they never admit their mistakes and hence no correction. Abdullah ibn Ubay जो मदीना में था, he was exposed many times. उसकी मुनाफिकत इतने बार खुली, but आखिर तक वो कभी भी उसने अपनी गलती का एतराफ नहीं किया और अपनी करेक्शन नहीं की और तौबा नहीं की. मोमिन कौन होता है कि वो अपनी गलती से सीखे, वो रियलाइज करे और तौबा करके अपनी करेक्शन कर ले. इसके कुछ स्टेप्स हम लोग देखेंगे कि फॉरगिवनेस के स्टेप्स क्या है. नंबर वन स्टेप क्या है कि आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, इजंट इट? हम कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान इज शोइंग अस द मिरर. आईना दिख गया कि झूठ हमने पढ़ा, कि झूठ, धोखेबाजी, डबल स्टैंडर्ड. तो आई विल चेक माई सेल्फ. अगर मुझे मेरी गलती नजर आई तो फर्स्ट स्टेप इज कुरान इज अ मिरर, इट शोज मी द मिस्टेक. नंबर 2 इज रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस, कि मुझे रियलाइज हो, मेरा ईमान इतना हो और मैं उस गलती को मान जाऊं, एक्सेप्ट कर लूं. नंबर 3, अब मुझे क्या करना है? मुझे अस्तगफार करना है. या अल्लाह, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. अस्तगफार फॉर माय पास्ट सिंस. नंबर 4, तौबा करनी है. व्हाट इज तौबा? प्लीज राइट डाउन. तौबा इज फॉर फ्यूचर, कि अल्लाह आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज के बाद मैं मुनाफिकत छोड़ दूंगी, ये सारे धोखेबाजियां छोड़ दूंगी. या अल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ कर दे, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगी. एंड नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू स्टॉप रिपीटिंग दैट मिस्टेक अगेन एंड अगेन. स्टॉप रिपीटिंग. एंड नेक्स्ट स्टेप इज करेक्शन. हमको अब सीखना है कि अगर झूठ नहीं बोलना है तो क्या बोलना है? सच बोलना भी सीखना पड़ेगा. जबान पे नहीं आता है, आदत चढ़ गई है ना झूठ बोलने की, तो we will have to consciously practice. ये है करेक्शन, टू डू द राइट थिंग. और अपनी तौबा को और पक्की करने के लिए साथ साथ में सदका भी करे, नेक अमल भी करे, नमाज के बाद भी तौबा करे, इस्तगफार भी करते रहे इंशाल्लाह, जिससे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे. तो ये कौन करता है? एक मोमिन करता है. और वर्सेस इसके ऑपोजिट मुनाफिक क्या करता है? मुनाफिक को अगर उसकी गलती बताई जाए, he keeps on justifying his own mistakes, never admits. A मुनाफिक never admits his mistake, never never corrects himself, never says sorry, तौबा नहीं बोलता, तौबा नहीं करता, सॉरी, और hence is never guided then, never guided by Allah, is always confused, always blinded. अब बताएं कि what do we choose? चॉइस तो करनी पड़ेगी, वेदर हमको हमारा हार्ट क्लीन करना है तौबा इस्तगफार से या फिर इसी पर जमे रहना है. अल्लाह हमें मुनाफिकत से बचा ले इंशाल्लाह, आमीन. हाँ, then we move on to ayat number 17. Ayat number 17 we won't be able to finish in this class, but we can start doing it inshallah, because in this ayat 17 and 18 and 19 until 20, from 17, 18, 19, 20, 4 ayat, we are going to learn 2 examples. Allah Ta'ala will give us 2 examples about munafiqeen.
हमको कोई बात मिसाल से समझाते अल्लाह ताला, और कुरान पाक में बहुत सी बातें अल्लाह ताला हमें मिसालों से समझाते हैं। मिसाल किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल। सो यहाँ पर अल्लाह ताला हमें दो मिसालों से समझाएंगे। आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ने फायर का एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ऑफ फायर, और आयत नंबर 19-20 में अल्लाह ताला ने हमको बारिश के पानी का एग्जाम्पल दिया है। ओके, सो दोनों एग्जाम्पल से हमें फिर मुनाफिकत और अच्छे से समझ आएगी। मिसालें भी किसको समझ आती है? कुरान पाक में आता है मिसालें अकल वालों को समझ में आती है। What is misal? Example. We will do ayat number 17. We still have 10 minutes. Ayat number 17. Kindly share it, Nishad. मसलुहुम, देखिए मसला पहले उर्दू में करते हैं हम लोग, फिर इंग्लिश में करेंगे। मसला मिसाल, मिसाल कहते हैं एग्जाम्पल को। मसलुहुम मिसाल उनकी, किनकी मिसाल? मुनाफिकों की। क जैसे, क दिख रहा है आपको? निशात वेरा, यू काइंडली शेयर दी आयत नंबर 17। मसलुहुम मिसाल उन मुनाफिकों की, क जैसे, जैसे की मिसाल, अल्लज़ी वो जिसने, इस्तौ जलाई, इस्तौकद जिसने जलाई, सुलगाई, नारन आग जिसने सुलगाई आग, फलम्मा फिर जब, फलम्मा फिर जब, अदाअत रोशन कर दिया उसने, उस आग को जलने से क्या हो गया? रोशन हो गया, लाइट अप हो गया। क्या? माहौलहू माहौल उसका, ज़हबल्लाहु ले गया अल्लाह, छीन लिया अल्लाह ने, बिनूरिहिम उनके नूर को, छीन लिया अल्लाह ने उनके नूर को, वतरकहुम और उसने छोड़ दिया उनको, वतरकहुम और उसने छोड़ दिया उनको, फी जुलुमातिन अंधेरों में, ला युबसिरून नहीं वो देखते, ला युबसिरून नहीं वो देखते। इसको इंग्लिश में करेंगे। एनी प्रॉब्लम देयर निशात? निशात has some problem. No issues. We'll do it now. In English. Ayat number is 17. दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, yes, here it is. मसलुहुम दिख रहा है अभी सना? मिसाल उनकी, Yes, ma'am. हाँ, their example, मसलुहुम their example, क like, मसली example, अल्लज़ी of the one, istawqada who lit, who kindled, naran fire. Example of those munafiq is like example of the one who lit, who kindled, naran a fire. Falamma then, adaat it illuminated, lighted, ma hawlahu the surrounding, his surrounding. माहौल हम लोग कहते हैं उर्दू में माहौल, उसका माहौल क्या हो गया? उस आग की वजह से माहौल रोशन हो गया। Then what happened? ज़हबल्लाहु अल्लाह ताला snatched, ज़हबा snatched, who snatched? अल्लाह ताला snatched, बिनूरिहिम their light, अल्लाह ताला snatched their नूर, their light, वतरकहुम wa means and, taraka he left them, fi zulumatin in darkness, he left them in the darkness, la yubsirun
Then they could not see. Then they could not see. What is this example? Inshallah, this example we will have to understand it in the next class, that this is an example of fire. What happens with fire? Yeah. What happens with fire? You have to kindle the fire, right? तो ये एक एग्जाम्पल दिया अल्लाह ताला ने कि वो एक इंसान, उसने इस्लाम का नूर उसको मिला, उसने इस्लाम कबूल किया, तो इस्लाम की शमा जलाई, तो उसको इस्लाम की रोशनी मिली. ये फायर में क्या क्या होता है? What can you see? What do we get from fire? We get heat and light. We get warmth and light. तो जिसने ये इस्लाम कबूल कर लिया, तो मुनाफिक भी शुरू में बोला ना कि मैं ईमान लाया, उसने इस्लाम कबूल किया, तो उसको क्या मिली इस्लाम से? उसको ईमान मिला, उसको इस्लाम यानी मोमिनों का साथ मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मिली. फिर क्या हुआ? फिर उसने जो धोखेबाजियां की, उसका जो माहौल था वो सारा इस्लामिक माहौल बन गया, लेकिन उसने धोखेबाजी की. बिकॉज ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स अल्लाह ताला ने उससे वो इस्लाम का नूर छीन लिया. उसको पता ही नहीं चला कि वो जो आग जल रही थी, देखिए आग जल रही है, अभी सडनली आई टेक अवे दिस फायर, सो नाउ देयर इज नो फायर, सो देयर इज नो लाइट एंड नो वार्मथ. तो अल्लाह ताला ने उससे हिदायत छीन ली. व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज डबल स्टैंडर्ड्स. और छोड़ दिया उसको अंधेरों में. अब अंधेरे में उसको कुछ नजर नहीं आता. अभी जो हमने वो आयत पढ़े सूरत अल हदीद की, that is the example. Inshallah, we will study this example in detail in the next class. There will be one more example of rain water. कहाँ से आती है बारिश? आसमान से. और कुरान भी कहाँ से नाजिल हुआ? आसमान से. तो उसका फायदा जो उठाते हैं, उसका दुनिया में भी फायदा है और आखिरत में भी. And one who abandons or doesn't value Islam, तो फिर उसका दुनिया में भी नुकसान है और आखिरत में भी. Isn't it? So we conclude this class with some reflections. आज आपने क्या सीखा? क्या किसी को शेयर करना है कि आज मैं क्या मैसेज लेके जा रही हूँ इस क्लास से? What did I learn today? Anybody of you would like to share? Kindly raise your hands. Any new students today? क्या किसी ने पहली बार क्लास ज्वाइन किया है? जरा हाथ ऊपर करें प्लीज. Anybody? No reflections? Kishwar? Yes, Kishwar appa. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैंने ये सीखा है कि मुझे अपना हार्ट क्लीन करनी है. कुरान इज शोइंग अस अ मिरर. मुझे मेरी गलती नजर आ रही है, तो मुझे रियलाइजेशन हो चुका है, तो मुझे बस इस्तगफार करना है और तौबा करना है अपने फ्यूचर के लिए, और मुझे वो सिन को रिपीट नहीं करना है. Very good. Alhamdulillah. Kishwar, very nicely summed up. माशाल्लाह. अल्लाह अमल की तौफीक दे. Yes. हाँ, yes, अंजुम. मैंने ये सीखा है कि मुनाफिकत से अल्लाह हमारी हिफाजत करे. जो सुन रहे, जो समझ रहे, अल्लाह उस पर हमारे को इस्तेकामत नसीब करे. और कोशिश तो करते हैं उस पर कायम रहने की, लेकिन फिर भी अल्लाह हम जो अपनी गलतियां हैं उसको हम एक्सेप्ट करके सुधारे इंशाअल्लाह. हाँ, जो गलतियां इंशाअल्लाह उसको सुधार के अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उस पर हमको कायम दायम रखे, जो हम सुन रहे समझ. आमीन आमीन. Yes, yes, निशात. Can you hear me, बाजी? Yes, I can hear you. Okay, मुझे वो आपका जो आपने इमेज यू टोल्ड अबाउट, मुझे वो बहुत, उससे बहुत घबराहट हुई कि क़यामत के दिन हर इंसान उसके साथ खड़ा होगा जो उसका माबूद होगा, और अल्लाह ताला जो शिर्क करने वाले होंगे उनको उनके माबूद के साथ जहन्नम में ढकेल देगा. तो अननोइंगली या नोइंगली जो भी अल्लाह हमको शिर्क से बचाए, दैट इज वेरी स्कैरी फॉर मी. इंशाल्लाह आई विल
be very watchful of what I do in my actions and my deeds and amulets or whatever. I'll just refrain from all that, inshallah ta'ala. Inshallah. Still we have not come to the topic of shirk. That is coming soon, inshallah. Ji, inshallah. So after this munafiqat, we are going to the topic of shirk itself. Allah hame bachaye usse, all right? Okay. Aisha? Yes, Aisha? Husna baji? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली इतना खौफ रहे, हमको इसका फ़र्क मालूम हो जाए कि मुनाफिक कौन है और मोमिन कौन है, हमको क्या करना है। तो बहुत आसान है और अल्लाह ताला ने सब कुछ कुरान में बता दिया है, तो हमको इधर उधर भी देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस पर जो कुछ सीखेंगे उस पर अमल करना है। तो इंशाल्लाह हम लोग अमल करेंगे और ऐसा डरेंगे नहीं कि नहीं ये बहुत कुछ पढ़ना भी नहीं है, जानना नहीं है, जानेंगे तो बचेंगे इंशाल्लाह। Exactly. बहुत अच्छी बात आपने कही हुस्ना बाजी ने. हुस्ना बाजी इज सीनियर को टीचर, कुरान पढ़ा रहे माशाल्लाह, वो भी बहुत सालों से और सीख भी रहे. तो शी इज राइट कि हमें ये नहीं डरना है कि बाबा अभी ये सब पढ़ेंगे फिर अमल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पकड़ होगी. देखिए, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी पकड़ तो होनी है. और दुनिया में ऐसा है कि जो डर गया वो मर गया, बट इस्लाम में ऐसा है कि जो डर गया वो बच गया. तो डर के इंशाल्लाह फिर हमें अल्लाह ताला की से दुआ भी करनी है और कोशिश करनी है, जो सीख रहे हैं उस पे अमल करेंगे तो फिर मोमिन के लिए डरने की कोई बात नहीं है इंशाल्लाह. और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? चले फिर दुआ पढ़ ले. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. हम नियत करते हैं इंशाल्लाह मंडे के दिन we will join this class again, same time, same ID, same password. जो कुछ हमने पढ़ा उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे. अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें मुनाफिकत से बचाए, कुफ्र से, शिर्क से, हर गुनाह से, अल्लाह की नाफरमानियों से बचाए. जो कुछ अल्लाह हमें हिदायत दे रहा है, हमें इससे ज्यादा हिदायत दे, अमल की तौफीक अता करे, हमारी औलाद को हमसे ज्यादा नेक हिदायत दे, और हमारे वालिदैन और हमारे टीचर्स के हक में हमको सदका जारिया बना दे. हमारे वालिदैन और टीचर्स को अपनी रहमत में ढांप ले. जितनी बहनें यहाँ बैठी है या अल्लाह उन सब को अपनी रहमत में ढांप ले, उन सब की जायज दुआओं को कबूल फरमाए. जितने बीमार हैं उनको कुल्ली शिफा अता करे, और जो मोमिन मोमिनात गुजर गए अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और हम सब से राजी हो जाए. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.